की सोच को जन जन तक, विश्व के कोने कोने तक पहुंचाए। बहुत बहुत आभार माननीय राष्ट्रपति महोदया का, उनके इस कृपा और उनके स्नेह के लिए, और सभी विभूतियों का भी आभार। मैं अब निवेदन करूंगा भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्रीमती उमा नंदूरी जी से कि वे स्वागत संबोधन के लिए पधारें। Namaskar. Her Excellency, Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, Honorable Governor of Madhya Pradesh, Shri Bangubhai Patel ji, respected Chief Minister of Madhya Pradesh, Shri Sivraj Singh Chauhan ji, Sangeet Natak Academy ka Chairperson, Sandhya Purecha Madam, Sahitya Academy ka Chairperson, President, and the ministers who are present here, Honorable Home Minister Sushri Narottam Mishra ji, Culture Minister Usha Thakur Madam, and all the distinguished scholars, artists, children, and the respected citizens of Bhopal. I welcome you all to this great festival of expressions, Unmesha and Utkarsha. These expressions are celebration of life, celebration of language, celebration of literature, celebration of art, and in composite culture of India. This is a whole celebration event. Madam, thank you so much, Madam, for honoring us today. Ministry of Culture is so happy to have you here, ma'am. And these programs, ma'am, I would just like to give you 2 lines on Unmesha. Unmesha is a scholars program, international literary festival, which is being organized by any government, with the government intervention for the first time in the country. Please give a huge round of applause for this initiative of Government of India. And Unmesha first edition has been done in Shimla. This is the second edition. And Madam, there are 500 plus scholars are there today for this Unmesha festival. And there are more than 100 languages in which sessions are being conducted. And this is a record by itself in the whole world. And also we have added many new editions, like editions on the environment, on health, feminism, e-literature, and so many other factors. All the details will be given by our President, Sahitya Academy. And regarding Utkarsh, ma'am, there are 36 states and union territories artists have come here to welcome and to participate in this event. And these artists are tribal and folk artists. And yesterday they have done Shobha Yatra. We also call it as Kala Yatra, and it was a huge success. The people of Madhya Pradesh and especially people of Bhopal have received the artists with great heart and with lot of overwhelmity. And Madam, I would like to give a brief recap of the journey of ACAM, what we have done so far. And ACAM journey has started in March 2021, Honorable Prime Minister at Dandi. Next, the programs have gone across the country, and the scale and size of the programs have enhanced program by program, event by event, campaign by campaign. In this, lots and lots of people have come forward to participate in the activities, and our ACAM has graduated from a whole of government approach to the whole of a people approach. With the participation of the people, then we started initially with the government approach, then we graduated to the people approach, and lot of Jan Bhagidari is being done. The programs on ACAM have extended to the various streams like sports, science, natural resources, tribal communities, education sector, economics, and whatnot. All the areas, almost all the areas we try to touch, and almost all the ministries of the Government of India and almost all the state governments are participating in the program with lot of enthusiasm. And in August 2021, we have done a Rashtragan in which many record number of people have come forward to sing our national anthem. Please give an applause for this. And in August 2022, Har Ghar Tiranga, you know it very well, is a massive campaign that has been done under ACAM, in which more than 22 crore households have hoisted the flag in their houses. These programs are not limited to the states. These programs are not limited to people living inside the country. They have spread across the world. And different missions also have celebrated this festival. And we have got in our country lot of unsung heroes who have not come to the limelight in the books,
in the people, and people of one region may know them, people of other regions may not know them. So the Ministry of Culture has taken initiative to celebrate and to honor the contributions made by these distinguished unsung heroes and to bring them out to the limelight. We have taken the help of all the teachers who are there at the ground level, and I am very happy to announce that our web portal, Azadi Ka Amrit Mahotsav web portal, has got more than 10,000 unsung heroes. And these heroes are being celebrated now across the country, starting from Kerala to Kashmir. This is a big achievement. Even government of Madhya Pradesh are also celebrating in a big scale the contributions of the major tribal heroes, unsung heroes. And recently also our Honorable Chief Minister has conducted lots of programs in this regard. Also, ma'am, we have done lot of scientific events involving the scientists who have contributed to the freedom struggle, like P.C. Ray, Vikram Sarabhai, Mokshagundam Visvesvaraya, and lots of competitions are being held in Kartavya in Delhi, in which children have participated with lot of enthusiasm. In addition, we are also doing the programs in the border village areas where the people from inside the country, they are taken to the border areas. Like we have taken the students from the orphanage, from Odisha, Bihar, and also the youth from across the country to the border areas of Arunachal Pradesh, Sikkim, and all other states, and gave them an exposure how the people of the border areas are living in those areas. Also, we have done lots of activities to celebrate the culture of the country. And in this endeavor, we have taken the help of lot of spiritual organizations also, in which the spiritual organizations, they have tried through the Indian technique of yoga, meditation and stress management across the country. Like Har Ghar Tiranga, Har Dil Dhyan, Har Ghar Dhyan, all these programs are being done with the help of spiritual organizations. Ma'am, we are trying to touch and reach out each and every person of the country. That is the biggest achievement of Azadi Ka Amrit Mahotsav. And last but not the least, I just wanted to tell about Ek Bharat Shrestha Bharat program, in which there is a cultural exchange between the different states, like Saurashtra Tamil Sangam, Madhav Mela, Kasi Tamil Sangam, etc. And this particular event is the biggest example of Ek Bharat Shrestha Bharat, in which the people from the state government of Madhya Pradesh, people from Sangeet Natak Academy, people from Sahitya Academy, scholars across the country, scholars outside the country, and the tribal and folk artists across the country, they have come together and they will be here for the next 3-4 days, and they will be exchanging the cultural ideas, literary ideas. That is the biggest example of Ek Bharat, Shrestha Bharat. And Madam, Akam ka celebrations a बहुत लंबा list है, and we are going to show in after a while in small video for that. I sincerely hope everyone stands benefited with this festival, and I am glad to welcome you all once again. And at this juncture, I would like to record my appreciation and acknowledgement to the government of Madhya Pradesh. They have contributed immensely, and the culture department especially. My friend Shekhar is sitting here, and he is day and night is here only guiding us to carry out these activities. In the last, I conclude with a prayer for the well-being, sukh, swasth, shanti of everyone present here. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kasyet dukha bhavayet. Om shanti, shanti, shanti. Thank you. बहुत बहुत आभार उमा नंदूरी जी का। देवी सज्जनों, स्वागत की इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अब मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि वे माननीय राष्ट्रपति महोदया को यहाँ भोपाल में उनके आगमन पर शॉल भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। भोपाल की इस ऐतिहासिक नगरी में और इस वैश्विक स्तर के आयोजन में, उन्मेष और उत्कर्ष के इस आयोजन में आप सबकी करताल ध्वनि के साथ निवेदन करूंगा संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर संध्या पुरेचा से कि वे माननीय राष्ट्रपति महोदया को हमारी बहुत ही प्रसिद्ध जनजातीय डोकरा मेटल आर्ट की एक सुंदर आकर्षक कृति भेंट करें। हमारी विरासत के ये रंग हैं। आपकी करताल ध्वनि के साथ निवेदन साहित्य अकादमी के अध्यक्ष
श्री माधव कौशिक जी से कि वे माननीय राष्ट्रपति महोदया को अकादमी के 3 महत्वपूर्ण प्रकाशनों की प्रतियां भेंट करें। इनमें शामिल हैं संथाली कविताओं का संकलन संतली अनोरहीन तुमुल, इसका संपादन जरुमनी ब्यसेरा ने किया है। दूसरी पुस्तक गुरुमाय केलमणि द्वारा प्रस्तुत बस्तर की धन्य देवी की वाचिक महागाथा लक्ष्मी जगार, और तीसरी पुस्तक है मूल हलवी गाथा का लिप्यांतरण और हरिहर वैष्णव का गद्यानुवाद। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। अब मैं निवेदन करूंगा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक से पुनः कि वे माननीय राज्यपाल महोदय को शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका भी इस अवसर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें, आप सबकी करतल ध्वनि के साथ। मैं निवेदन करूंगा संस्कृति मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्रीमती उमानंद दूरी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को शॉल और मेमेंटो भेंट करके उनका भी इस अवसर पर उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। लेकिन आपकी करतल ध्वनि के साथ। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन सभी विभूतियों का। देवियों सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री महोदय की प्रेरणा से वर्ष 2022 में एशिया का सबसे बड़ा साहित्योत्सव उन्मेष अस्तित्व में आया था और इसका पहला आयोजन, जैसा कि आपने पहले भी सुना, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में किया गया था। उन्मेष आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत किया जाने वाला देश का सबसे बड़ा साहित्य आयोजन है। इसकी परिकल्पना और इसके स्वरूप का परिचय पाना हम सबके लिए एक ज्ञानवर्धक क्षण होगा और इसके लिए मैं निवेदन करूंगा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री माधव कौशिक जी से कि उन्मेष की परिकल्पना और इसके स्वरूप से हम सबको परिचित कराएं। माधव कौशिक जी। परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, सम्माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश श्री पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, मैडम संध्या पुरेचा जी, अध्यक्ष साहित्य संगीत नाटक अकादमी उमानंद दूरी जी, तथा पूरे देश से आए और विदेशों से आए साहित्यकार बंधुओं, मित्रों, महाकालेश्वर की इस पावन धरती पर जहाँ कालिदास जैसे महान विभूतियों ने जन्म लिया, जहाँ कुंभ का आयोजन होता है, साहित्य के इस महाकुंभ में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, ये एक ऐसा अवसर है जिस पे हम गर्व कर सकते हैं। उन्मेष का जैसे पहले बताया कि शिमला में जब हमने आयोजन किया, उस समय लगभग 400 लेखक थे और 80 भाषाएं थी। इस बार हमने 575 लेखकों को आमंत्रित किया है और 103 भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले। यदि आप पूरे इस सभागार की एक बार विहंगम दृष्टि डालेंगे तो आपको संपूर्ण भारत नजर आएगा अपनी पूरी विविधता के साथ। सभी भाषाओं के प्रतिनिधि, ऐसे रचनाकार, साहित्यकार जिन्होंने अपना पूरा जीवन साहित्य को समर्पित किया, इस देश को समर्पित किया, वह हमारे मध्य है। उन्मेष का ये दूसरा संस्करण एशिया का तो सबसे बड़ा है ही है। मुझे लगता है कि विश्व का भी सबसे बड़ा इस मायने में हम कह सकते हैं कि दुनिया का अकेला ये देश है जिसकी 24 तो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं और बोलियों की संख्या अनगिनत है। हम भारत को भाषाओं का अजायब घर भी कह सकते हैं, म्यूजियम ऑफ द लैंग्वेजेस। मित्रों, इस
अमृत काल में जो हमने कार्य किए हैं, ये पहला ऐसा संस्थान है जिसने एक वर्ष में 600 आयोजन किए हैं। 500 पुस्तकों का हमने प्रकाशन किया है। हर 18 घंटे के बाद साहित्य अकादमी की एक पुस्तक प्रकाशित होती है। इसकी कल्पना करके देखिए कि अमृत काल की हमारी उपलब्धियां कितनी रही हैं। स्वयं प्रधानमंत्री महोदय ने एक बार नहीं कई बार सार्वजनिक मंचों से हमारे प्रकाशनों का उल्लेख किया। परसों भी मन की बात आयोजन में उन्होंने 2 हमारे आयोजनों का उल्लेख किया, जिसमें दिव्यांगों की राइटर्स मीट उल्लेखनीय थी और संस्कृत का एक सेमिनार उल्लेखनीय था। ये प्रोत्साहन के शब्द हमें प्रेरित करते हैं और काम करने के लिए एक उत्कट इच्छा। साहित्यकार वैसे भी दुनिया का सबसे बेचैन व्यक्ति है, जो चाहता है कि मैं सब कुछ अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को देना चाहता हूँ। उन्मेष के इस संस्करण में यदि आप हमारे इस कार्ड पे नजर डालेंगे, कवि, कथाकार, उपन्यासकार, नाटककार, मेरा कहने का अर्थ है कि कागज से लेके कंप्यूटर तक और कलम से लेके कैनवस तक अभिव्यक्ति की कोई विधा ऐसी नहीं है जिसका बड़ा साहित्यकार विद्वान हमारे यहाँ मौजूद नहीं है। अभिव्यक्ति का कोई रूप ऐसा नहीं है जिसको हमने आमंत्रित नहीं किया। यहाँ आके इन आयोजनों को देख के आपको लगेगा कि ये देश कितना महान है। हम अपनी हर प्रकाशन के पीछे एक पंक्ति लिखते हैं, इंडियन लिटरेचर इज वन दो रिटन इन मैनी लैंग्वेजेस। भारतीय साहित्य एक है, बेशक वह बहुत सारी भाषाओं में लिखा जाता है। और हमने ये साबित कर दिया है, साहित्य अकादमी ने साबित कर दिया कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुवाहाटी से चौपाटी तक कोई लेखक किसी भाषा, किसी बोली में लिखता है, उसके सरोकार एक है, उसके संस्कार एक है, उसकी संवेदना एक है और उसकी अभिव्यक्ति के माध्यम अलग होते हुए भी वह भारतीय साहित्यिक परंपराओं का प्रतिनिधित्व करता है। तो मित्रों, कोई ऐसा विमर्श नहीं है जो हमने इस बार शामिल नहीं किया। स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, उत्तराधुनिकता, सिनेमा, कला, रंगमंच, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो 4 दिनों में आपके सामने नहीं आएगा। और बदलते परिवेश में केवल और केवल साहित्यकार है जो इस संसार को कलुष से बचा सकता है, ये बात याद रखिए। क्योंकि अकेला साहित्यकार ऐसा है जिसके सामने कालंकित सीमाएं नहीं है, उसकी पहुंच पूरी दुनिया में एक तरह से है। और वसुधैव कुटुंबकम को यदि कोई व्यक्ति साकार रूप दे सकता है तो वो साहित्यकार है। मित्रों, अधिक समय ना लेता हुआ मुझे एक बात वहाँ बैठे बैठे याद आई। जब साहित्य अकादमी का गठन 1954 में हुआ तो 1955 में पहला हिंदी का जो सम्मान किसी महान लेखक को दिया गया वो मध्य प्रदेश के माखनलाल चतुर्वेदी जी। उनकी कविता पुष्प की अभिलाषा, वो सिर्फ पुष्प की अभिलाषा नहीं, वो हर लेखक की अभिलाषा है कि मुझे उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक। तो साहित्य संस्कृति के ये बलिदानी लोग, ये कलम के सिपाही आज हमारे बीच हैं। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये वास्तव में ऐतिहासिक पल है कि राष्ट्रपति महोदय हमारे बीच हैं, हमारे साथ हैं और पूरा प्रशासन हमारे साथ है। मित्रों, मुझे दिनकर जी की 2 पंक्तियां याद आई, सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नखतमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माधव कौशिक जी का। दिव्य सज्जनों, उन्मेष के साथ ही आज से देश की लोक और जनजातीय प्रदर्शन कलाओं का राष्ट्रीय महोत्सव उत्कर्ष का भी शुभारंभ हो रहा है। इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत संगीत नाटक अकादमी ने किया है, जो इस क्षेत्र में देश की शीर्षस्थ संस्था है और इसका आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ही किया गया है। मैं निवेदन करूंगा संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर संध्या पुरेचा से कि वे
उत्कर्ष की परिकल्पना और इसके स्वरूप का परिचय आप सबके समक्ष रखें। डॉक्टर संध्या पुरेचा। नमो नमः। यह बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी मंच पर विराजमान है। मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस साहित्यिक और सांस्कृतिक आयोजन में आपकी उपस्थिति मात्र ने हमारे हृदयों को उत्फुल्लता के उत्कर्ष पर पहुँचा दिया है। आपकी उपस्थिति ने हमारे उद्देश्य को औचित्य प्रदान किया है। मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि आज भोपाल के इस हंस ध्वनि सभागार में आपकी उपस्थिति का संगीत नाटक अकादमी की भविष्य की योजनाओं पर बहुत ही दूरगामी और सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आपने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार अलंकरण समारोह के अवसर पर अपने संबोधन में कहा था कि आप लोगों ने कला के सागर से तो मिलवा दिया है, कला की नदियों और झरनों से कब मिलवाओगे? तो ये महोदया, उत्कर्ष का यह मंच कला की वही नदियां और झरने हैं। भारत की लोक एवं जनजातीय अभिव्यक्तियों के इस उत्सव में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 750 से भी अधिक कलाकार यहाँ सभागार में उपस्थित हैं, जो अपने अपने क्षेत्र की लोक और जातीय अभिव्यक्तियों को प्रदर्शित करने पधारे हैं। मंच पर मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी तथा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री माधव कौशिक जी उपस्थित हैं। मैं संगीत नाटक अकादमी की ओर से भी आपका स्वागत करती हूँ। संक्षेप में, संगीत नाटक अकादमी द्वारा उत्कर्ष महोत्सव के आयोजन का मूल उद्देश्य वास्तव में भारत की लोक एवं जनजातीय प्रदर्शन कलाओं के माध्यम से सद्भाव और सामंजस्य की भावना को पुनर्व्याख्यायित करना ही है। उत्कर्ष का उद्देश्य भारतीय लोक एवं जनजातीय संगीत, नृत्य और नाटक से आम लोगों, विशेष रूप से युवा पीढ़ी को परिचित करना है, जिससे कि भारतीय कलाओं के लोक पक्ष के प्रति उनमें एक सकारात्मक और रचनात्मक समझ विकसित हो सके। हम सभी जानते हैं कि लोक रूप कला का प्रत्येक किसी न किसी विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की उपज होता है और इसका अपना इतिहास और मिथक होता है, जो अपनी निरंतरता में अतीत को वर्तमान से जोड़ता है। इस आयोजन का उद्देश्य इसी निरंतरता को बनाए रखना है। भरत मुनि रचित नाट्य शास्त्र, जिसे पंचम वेद कहा जाता है, उसमें कहा गया है, लोक प्रसिद्धम नाट्यम लोकात्मकम तथा। वह भरत मुनि कहते हैं, आध्यात्म प्रमाण देते हैं, वेद प्रमाण देते हैं और लोक प्रमाण भी देते हैं। और साहित्य और संस्कृति में उन्होंने लोक प्रमाण को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और उत्कर्ष उसी निरंतरता का एक प्रयास है। उत्कर्ष महज एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं है, यह विविधता में एकता की भावना के सूत्रीकरण का भी प्रयास है। देश के विभिन्न प्रदेशों, विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं, कला शैलियों, परंपराओं में भारतीयता और भारतीय मानस का साझा स्वरूप किस प्रकार अक्षुण्ण है और इसे किस प्रकार हमारे संस्कृत कर्मी अभिव्यक्ति देते रहे हैं और यह किस प्रकार भारत के समग्र सांस्कृतिक वाङ्मय का निर्माण करते हैं, इस 3 दिवसीय आयोजन के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत का दर्शन सहज ही हमें समझ आ जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, संगीत नाटक अकादमी का काम प्रदर्शन कलाओं का संरक्षण, संवर्धन और प्रचार प्रसार है। भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय की स्वायत्त संस्था होने के कारण देश की सांस्कृतिक नीतियां और गतिविधियों के कार्यान्वयन में सहयोग करना अकादमी के दायित्वों में शामिल है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री के अनुसार हमारा देश आज अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। इसी अमृत काल में गौरवशाली अतीत की नींव पर समर्थ और भव्य भारत का निर्माण होगा। स्पष्ट है कि इस नवीन भारत के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री की पूर्ति यही संस्कृति ही करेगी। अंत में साहित्य अकादमी नई दिल्ली और संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी, क्योंकि इस आयोजन में इन दोनों ने हमें भरपूर
सहयोग किया है। मैं मंच पर उपस्थित माननीय राष्ट्रीय महोदया का पुनः आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय राज्यपाल और मुख्यमंत्री महोदय समेत यहाँ उपस्थित सभी श्रेष्ठियों, कलाकारों, मर्मज्ञों, रसिकों का अभिवादन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आप सभी की गरिमामय उपस्थिति उत्कर्ष को औचित्य प्रदान करेगी। इसी विश्वास के साथ मैं अपना संबोधन यहीं समाप्त करती हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत आभार डॉक्टर संध्या पुरेचा का। देवियों सज्जनों, आजादी का अमृत महोत्सव काल में साहित्य अकादमी और संगीत नाटक अकादमी ने जो असंख्य गतिविधियां देश में और देश से बाहर भी आयोजित की, और इनकी अपनी जो यात्रा है अब तक की, उस पर आधारित एक छोटी सी वीडियो फिल्म है। आइए देखते हैं ये फिल्म। Sahitya Akademi began its journey of literary services to India in 1954. Jawaharlal Nehru was the first president and Sarvapalli Radhakrishnan was its first vice president. Great luminaries and distinguished scholars like Sridhi Kumar Chatterjee, Rajaji, Hazari Prasad Trivedi, Uma Shankar Joshi, Vasudev Saran Agarwal, Kuvempu, K.V. Jagannathan, Jayakanthan, Vishwanatha Satyanarayana, Dinkar, and many more joined in this glorious journey of Sahitya Akademi to enrich literature of the country. The number of languages recognized by the Akademi kept increasing as Sahitya Akademi strived to serve all sections of literary fraternity. Sahitya Akademi Awards in 4 categories became the hallmark of creative excellence in India in all the languages. Sahitya Akademi also strives to promote Indian literature and culture abroad. भारत की साहित्य अकादमी ने रूसी और चीनी भाषा में 10 भारतीय साहित्यिक कृतियों के अनुवाद का काम पूरा किया है। All the programs of Sahitya Akademi are in alignment with the visionary scheme of Shri Narendra Modi ji, Honorable Prime Minister of India. Ek Bharat, Shresht Bharat. Under Azadi Ka Amrit Mahotsav celebrations, Sahitya Akademi has been organizing literary events that capture the inclusive nature of Indian culture. Akademi has also been organizing events that cater to various sections of literary community of India. आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर हम सभी पूरे उत्साह से अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ऐसा ही एक कार्यक्रम था दिव्यांग लेखकों के लिए राइटर मीट का आयोजन। इसमें रिकॉर्ड संख्या में लोगों की सहभागिता देखी गई। वहीं आंध्र प्रदेश के तिरुपति में राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन का आयोजन हुआ। The Festival of Expression was held for the first time in Shimla in June 2022 as part of Azadi Ka Amrit Mahotsav. भारतीय भक्ति साहित्यम यत् वर्तते तत् अत्यन्तं पुरातनम् अनुत्तमं च। More than 375 writers, scholars and distinguished personalities participated in the first edition. सुश्री उषा ठाकुर जी और देश भर से यहाँ उपस्थित संपूर्ण देश का साहित्य जगत यहाँ विविधता के साथ उपस्थित है और मैं सचमुच में गदगद प्रसन्न और आनंदित हूं कि ये सौभाग्य मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को मिला है। मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र, हजारों साल पुराना तो ज्ञात इतिहास है हमारा। दुनिया के विकसित देशों में जब सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे देश में वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। ये वो धरती है जिसने हजारों साल पहले कहा एकम सद विप्रा बहुधा वदंती।
ये वो धरती है जिसने सारे विश्व को संदेश दिया, अयम निजम पराबेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा, ये तेरा है। ये सोच छोटे मन वालों का होता है, जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। ये वो धरती है जिसके गांव का बच्चा बच्चा इस मंत्र का उद्घोष करता है, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। ये वो धरती है जिसके ऋषियों ने सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग भवेत् का मंत्र दिया। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। लेकिन सब सुखी कैसे हो? केवल भोजन से सुखी नहीं हो सकते। रोटी, कपड़ा, मकान, केवल यही आवश्यकताएं नहीं है। मनुष्य को संपूर्ण रूप से सुखी करना है तो शरीर के सुख के साथ मन का सुख भी चाहिए, बुद्धि का सुख भी चाहिए, आत्मा का सुख भी चाहिए। और मन, बुद्धि और आत्मा का सुख अगर कोई देता है वो साहित्य, संगीत और कला ही देती है। और आज वो कलाकार और साहित्यकार इतनी बड़ी संख्या में यहां उपस्थित है। आज मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा। एक तरफ वो वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारी कला, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारा साहित्य, हमारे जीवन मूल्य, उसको कैसे निकाल के सामने ला रहे हैं। देखिए, एक अलग दौर है ये। तब जब हमारी भारत की राष्ट्रपति स्वच्छता के स्थान, स्वच्छता के स्वयं झाड़ू लेके निकलती है तो देश उत्साह और आनंद से भर जाता है और नई प्रेरणा प्राप्त करता है। तब जब हमारे प्रधानमंत्री जी अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर काशी में हो या महाकाल महाराज के दर्शन करने जाएं और साष्टांग दंडवत और प्रणाम करते हैं तो देश हमारे पुराने मूल्यों को फिर से याद करता है। ये एक अद्भुत और नया दौर है सचमुच में। और उसी में से उन्मेष और उत्कर्ष जैसे कार्यक्रम अद्भुत है हमारे। देखिए, इस देश में इतनी भाषाएं, इतनी बोलियां, हम कहते हैं अलग भाषा अलग वेश, फिर भी अपना एक देश, लेकिन मूलभूत एकता है। और उन्मेष और उत्कर्ष के रूप में ऐसे कार्यक्रम जो हमारे साहित्यकार, हमारे कलाकार, हमारे संगीतज्ञ उनको सामने लेके आते हैं तो सचमुच में उनको भी कुछ और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। और ऐसे आयोजन निश्चित तौर पर सारी दुनिया को भी इकट्ठा करने में समर्थ और सक्षम होते हैं। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मध्य प्रदेश प्राचीन काल से कला और संस्कृति की संगम स्थली रही है। यहाँ कला, संस्कृति और वैभवपूर्ण अतीत और समृद्धशाली वर्तमान है। ये साहित्यकारों की कर्म भूमि और कलाकारों की प्रिय भूमि रही है। भीमबेटका, बाग, नचना कुठार, खजुराहो इसके सजीव और साक्षात प्रमाण हैं। और मध्य प्रदेश में मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, कला और संस्कृति के राजाश्रय की प्राचीन परंपरा रही है। चाहे राजा भोज हो, चाहे माता देवी अहिल्या बाई हो, उन्होंने धर्म, संस्कृति, साहित्य और संगीत के संरक्षण में अपना पूरा जीवन लगाने का काम किया है। इस धरती पर बाणभट्ट, कालिदास, राजशेखर, पतंजलि, भर्तहरि, अनंगहर्ष, वत्सराज, केशवदास, पद्माकर
और बिहारी जैसे रत्न हुए हैं। मैं सचमुच में इनके नाम लेके आनंद और गर्व का महसूस कर रहा हूं। लता मंगेशकर जी, किशोर कुमार जी, पंडित कुमार गंधर्व, उस्ताद अलाउद्दीन खां जैसे कलाकारों को इसी मध्य प्रदेश ने जन्म दिया। यह सौभाग्य भी मध्य प्रदेश को प्राप्त है। गोपाल शरण सिंह, दादा माखनलाल चतुर्वेदी, अभी आपने उल्लेख किया, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तू देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। हरिशंकर परसाई, वृंदावन लाल वर्मा, नरेश मेहता, अमृतलाल बेगड़ और भवानी प्रसाद मिश्र जैसे साहित्यकार इस माटी से उपजे, इसलिए मैं इस माटी को प्रणाम सचमुच में करता हूं। अनेकों पत्रकार, वेद प्रताप वैदिक, अविनीश जैन, प्रभास जोशी, सुशील दोषी और सचमुच में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे कवि हृदय राजनेता को भी इसी प्रदेश उनकी कर्मस्थली ये रही है। मैं आज एक बार फिर इस आयोजन के लिए, मध्य प्रदेश को सौभाग्य मिला इस आयोजन का, मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है, आपने सही कहा कि साहित्य और कला और संगीत में वो ताकत है कि पूरी दुनिया को वो एक रख सके। और इसलिए मेरा विश्वास है कि भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन ये कला, संगीत और साहित्य ही कराएगा। इसलिए एक बार मैं फिर आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। देवियों सज्जनों, आजादी का अमृत महोत्सव काल में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने एफएम रेडियो के साथ मिलकर एक बहुत अनूठी पहल की थी, जिसका नाम है हर घर हेल्दी। इस कैंपेन के दौरान लोगों ने जो पत्र भेजे, असंख्य पत्र भेजे, वो स्वयं में अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उसने साधुवाद के पात्र है। उन्मेष और उत्कर्ष का आयोजन भारत की विभिन्न परंपराओं के जोड़ने हमारे प्रिय नेता एवं भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरंदर्शी पहल एक भारत श्रेष्ठ भारत को सफल बनाने की सार्थक और सराहनीय पहल है। भारत दुनिया का ऐसा अद्भुत देश है जहां से विश्व के समस्त ज्ञान, विज्ञान और दर्शन की विभिन्न धाराएं दुनिया भर में प्रवाहमान हुई है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि और संत परंपरा ने अपने अनुभूति के साधना के ज्ञान को मानवता के कल्याण के पथ में आलोकन में समर्पित किया। इसलिए उनकी रचनाएं देश काल की सीमाओं से परे आज भी प्रासंगिक है। कलात्मक की शक्ति अद्भुत होती है। दिल, दिमाग और आत्मशक्ति के समन्वय से रचना का सृजन होता है। इसके लिए किसी साधन संसाधन की आवश्यकता नहीं होती है। इसका जीवन प्रतिरूप जनजाति समुदाय की कलात्मकता है, जिसकी कला, रचना कौशल, संगीत और नृत्य सभी काल की सीमाओं से परे अमिट मूल्य, मौलिक सादगी और गहन अनुभूति का अद्भुत आभास करते हैं। भारत की भाषाएं भौगोलिक विविधता के उदार मिश्रण ने बेहतरीन साहित्य का निर्माण किया, जिसकी वानगी अनूठी और अप्रीतम विविधता है। आशा है कि डिजिटल क्रांति के दौर में उत्कर्ष का आयोजन संस्कृति, कला, साहित्य और भाषा के सृजनकारों के बीच वैश्विक विमर्श सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण में सहयोगी होगा। भारत की प्राचीन सुकृति वसुदेव कुटुंबकम की प्रामाणिकता के साथ भारत की एकता श्रेष्ठता को दुनिया भर में स्थापित करने में सफल होगा। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य, लोक एवं जनजाति अभिव्यक्तियों के सफल अनूठे आयोजन के लिए सांस्कृतिक मंत्रालय, साहित्य तथा संगीत अकादमी और मध्य प्रदेश
की सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अंत में माननीय राष्ट्रपति महोदया ने अपनी व्यस्तता के बीच इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर जो गरिमा प्रदान की है, उसके लिए प्रदेश के प्रथम नागरिक के तौर पे मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। आभार। भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार माननीय राज्यपाल महोदय का। देवियों सज्जनों, उन्मेष और उत्कर्ष के उद्घाटन कार्यक्रम में अब वो क्षण है जिसकी हम सभी बहुत आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से कि वे इस अवसर पर अपने उद्बोधन से हम सबको कृतार्थ करें, अपना शुभ संदेश हम सबको दें। माननीय राष्ट्रपति महोदया। उन्मेष और उत्कर्ष, इन दोनों उत्सवों के शुभारंभ में उपस्थित मध्य प्रदेश के राज्यपाल आदरणीय श्री मंगू भाई पटेल जी, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री माधव कौशिक जी, संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर संध्या पुरेचा जी, संस्कृति मंत्रालय की अधिकारीगण, सभी साहित्यकार एवं कलाकार भाइयों और बहनों, फ्रेंड्स ऑफ इंडिया एंड लवर्स ऑफ लिटरेचर फ्रॉम अदर कंट्रीज प्रेजेंट हियर विथ आस, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजन, सभी को मेरा नमस्कार। साहित्य एवं कला की विभिन्न धाराओं के इस महासंगम में आप सबके साथ अवगाहन करते हुए मुझे आत्मिक प्रसन्नता हो रही है। मुझे विश्वास है कि आप सब आज़ादी का अमृत महोत्सव से जुड़े साहित्य तथा कला के इन उत्सवों में अपनी प्रतिभागिता से उत्साहित है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के बाद अब तक मेरी सबसे अधिक यात्राएं मध्य प्रदेश में हुई है। संयोग से आज मध्य प्रदेश की ये मेरी 5वीं यात्रा है। आप सबके आतिथ्य के लिए मैं मध्य प्रदेश के 8 करोड़ निवासियों को धन्यवाद देती हूँ। आज से शुरू होने वाले दोनों उत्सवों के आयोजन के लिए मैं केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, साहित्य अकादमी तथा संगीत नाटक अकादमी के ऑर्गेनाइजर्स को सराहना करती हूँ। साथ ही सक्रिय सहयोग प्रदान करने के लिए मैं मध्य प्रदेश सरकार की प्रशंसा करती हूँ। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा हमारी संस्कृति के विभिन्न आयामों में नई ऊर्जा का संचार करने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। परसों यानी 5 अगस्त को दिल्ली में आयोजित किए जाने वाले एक और उत्सव फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज के उद्घाटन में भी मुझे जाने का मौका मिलेगा। इन सभी आयामों पर निरंतर ध्यान बनाए रखने में से एक मजबूत कल्चरल इकोसिस्टम का निर्माण संभव हो रहा है। इस वर्ष G20 समूह की अध्यक्षता का दायित्व भारत को दिया गया है। इस दायित्व का भारत द्वारा वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के आदर्श के अनुरूप निर्वहन किया जा रहा है। हमारी परंपरा में यत्र विश्वम भवति एक नीडम की भावना प्राचीन काल से आधुनिक युग तक निरंतर व्यक्त होती जा रही है। हिंदी के वरेण्य कवि जयशंकर प्रसाद जी ने इसी भावना को व्यक्त करते हुए कहा था, अरुण यह मधुमय देश हमारा, अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान खिंची को मिलता एक सहारा, अरुण ये मधुमय देश हमारा। राष्ट्र प्रेम और विश्व बंधुत्व यानी पैट्रियटिज्म और यूनिवर्सल ब्रदरहुड, इन दोनों आदर्शों का संगम हमारे देश की चिंतन धाराओं में सदैव दिखाई देता रहता है। देवियों और स्वजनों, कविवर
रविंद्रनाथ टैगोर ने, जिनके नाम से आज जो ये ऑडिटोरियम बनाया गया है, हम सब इकट्ठे हुए हैं। ये सुशोभित इन भवन में उनके द्वारा लिखित एक कविता का मैं उल्लेख करना चाहती हूँ। इस कविता में निबंध एक आख्यान के माध्यम से गुरुदेव ने ये प्रतिपादित किया है कि साहित्य ही सत्य का संभावक होता है। आदि कवि वाल्मीकि ने नारद मुनि ने हंसते हुए कहा था, नारद कहिला हासी से सोतो जा रोचिबे तुम्ही, अर्थात तुम जो अपने काव्यों में कहेंगे वही सत्य है। साहित्यकार का सत्य इतिहासकार के साथ तथ्य से अधिक प्रामाणिक होता है। मानवता का वास्तविक इतिहास विश्व के महान साहित्यों में ही मिलता है। साहित्य ने मानवता को आईना भी दिखाता है और बचाया भी है और आगे भी बढ़ाया है। साहित्य और कला ने संवेदनशीलता और करुणा को बनाए रखा है, यानी मनुष्य की मनुष्यता को बचाए रखा है। मानवता के संरक्षण के इस परम पुनीत अभियान में प्रतिभागी होने के नाते आप सभी साहित्यकार और कलाकार सम्मान के बहुत बहुत अधिकार है। आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। Ladies and gentlemen, I extend a special welcome to the international participants of this festival, including those from our neighboring countries. In a world facing many challenges, we must find effective ways to build greater understanding among peoples of different cultures and beliefs. Storytellers and poets have a central role in that effort because literature has the unique ability to connect our experiences and to transcend our differences. Let us use the ability of literature to reveal our common destiny and strengthen our global community. Everyone is familiar with the timeless supremacy of literature. The greatest empire having worldwide domination in the 19th and early 20th centuries has become history. But the power of the writings of William Shakespeare is everlasting. उन्मेष का अर्थ आंखों का खुलना भी होता है और फूलों का खिलना भी। उन्मेष का अर्थ प्रज्ञा का प्रकाश भी है और जागरण भी। 19वीं सदी के हमारे देश में नवजागरण की अखिल धाराएं प्रवाहित हुई, जो 20वीं सदी के पूर्वार्ध तक प्रवहमान रही। हमारे स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों के साहित्य ने शक्ति प्रदान की है। पूर्व से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से लेकर पश्चिम से झवेरचंद मेघानी तक तथा दक्षिण में सुब्रमण्य भारती से लेकर उत्तर में ज्ञानी हीरा सिंह दर्द तक देश के कोने कोने में अनेक रचनाकारों ने स्वाधीनता और पुनर्जागरण के आदर्श को अभिव्यक्ति प्रदान की है। भारतीयता के गौरव को स्वर देने वाले उन रचनाकारों के इतनी विशाल परंपरा विकसित हुई है कि एक संबोधन में सबका उल्लेख करना असंभव है। देशभक्ति की भावना को गहन अभिव्यक्ति भारत माता के अमर सुपुत्र उत्कलमणि गोपबंधु दास के एक अमर पंक्ति में निरूपित कर रही हूँ आपके सामने। मनेत्रे भारत शालग्राम प्रतिष्ठान मोर प्रिय पुरी धाम। अर्थात मेरी दृष्टि से भारत भूमि का एक एक पत्थर शालिग्राम की तरह पूजनीय है। भारत का प्रत्येक स्थान मुझे जगन्नाथपुरी की तरह प्रिय है। देशभक्ति से ओतप्रोत इस कविता में मातृभूमि भारत का देवत्व प्रदान करने की भावना अद्भुत रूप से अभिव्यक्त की गई है।
भारतीय पुनर्जागरण तथा स्वाधीनता संग्राम के कालखंड में लिखे गए उपन्यास, कहानियाँ, कविताएं और नाटक आज भी लोकप्रिय है और जनमानस पर उनका व्यापक प्रभाव अभी भी विद्यमान है। देवियों और स्वजनों, आज़ादी का अमृत महोत्सव के ऐतिहासिक पड़ाव पर हमें ये विचार करना है कि क्या वर्तमान में हम ऐसा साहित्य को उन्मेष देख रहे हैं जिनमें बड़ी संख्या में पाठकों की भागीदारी हो। मेरी जानकारी में ओडिया भाषा में लिखित एक समकालीन उपन्यास याज्ञसेनी के 100 से अधिक रीप्रिंट हो चुके हैं। ये उस उपन्यास को पढ़ने के लिए पाठकों में विद्यमान ये उत्साह का ये प्रमाण है। संप्रेषणीय होना साहित्य की प्रमुख कसौटी है। साहित्य लोगों को जोड़ता भी है और उन्हें आपस में जोड़ता भी है, जुड़ता भी है और जोड़ता भी है। मैं और मेरा से ऊपर उठकर जो साहित्य रचा जाता है, जो कला प्रस्तुत की जाती है, उन्हें रचनाओं और कलाकृतियों में सार्थकता होती है। मेरे घर, परिवार, गांव और स्थानीय परिवारों की भाषाएं संथाली तथा ओडिया है। आज 140 करोड़ देशवासियों का मेरा परिवार है और सभी भाषाएं और बोलियां मेरी है, मेरी अपना है। संथाली और ओडिया भाषाओं से मेरा अधिक परिचय रहा है। संथाली भाषा का अधिकांश साहित्य वाचिक परंपरा में पाया जाता है। संथाली भाषा के महाकवि डॉक्टर रामदास टुडू रसिका के साहित्य पहले बांग्ला लिपि में प्रकाशित हुआ। संथाली के महाकवि साधु रामचंद्र मुर्मू ने अद्भुत काव्य रचना की। रघुनाथ मुर्मू जी ने ओल चिकी लिपि के माध्यम से संथाली भाषा को सुदृढ़ लिखित आधार प्रदान किया है। उन्होंने बिदु चंदन तथा खेरवाड़ वीर नामक नाटक लिखे जिनका जनमानस में विशेष स्थान है। मैं चाहूंगी कि इन नाटकों का तथा संथाली भाषा की महत्वपूर्ण पुस्तकों का अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हो। वस्तुतः तो भी भारतीय भाषाओं की प्रमुख पुस्तकों का अन्य भाषाओं में अनुवाद होने से भारतीय साहित्य और अधिक समृद्ध हो सकता है। संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान दिलाने की मेरी विनम्र प्रयासों को कवि हृदय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आशीर्वाद दिया था। भारत रत्न से सम्मानित मध्य प्रदेश का सपूत अटल जी को नमन करती हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। देवियों और स्वजनों, संगीत नाटक अकादमी मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा उत्कर्ष नामक उत्सवों के माध्यम से लोक एवं जनजातीय नृत्यों को आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए मैं आयोजकों को सराहना करती हूँ। उत्कर्ष का अर्थ उन्नति। जो भारत का जनजातीय समाज समुन्नय हो जाएगा तो भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा। आप निश्चित रूप से जानते होंगे भारतवर्ष में अब तक 700 से ज्यादा कम्युनिटी के आदिवासी बसवास करते हैं, लेकिन उनका भाषा 700 से ज्यादा है। मुझे लगता है उससे डबल है, क्योंकि हर 50 किलोमीटर दूर से नया भाषा है। इसीलिए उसी भाषा को संजो के रखना हम सबका कर्तव्य है, लेखकों का कर्तव्य है, प्रत्येक मानवों का कर्तव्य है। क्योंकि अभी हम ऐसे युग में पदार्पण किए हैं, अमृत काल में पदार्पण किए हैं। आगे जाकर मुझे लगता है ये जनजातियों का भाषा, उनका संस्कृति, परंपरा जो उज्जीवित होके रहे, लोगों के सामने उसको और भी विकासित हो, इसके पूर्व उनको संरक्षण करना, संजो के रखना हम सबका दायित्व है। भारत की सबसे बड़ी